We should not forget the recording. So everyone in Corona time was talking about the vitamins. What are the vitamins? So vitamins basically, if you'll see, there are two type, right? Fatty acid. Sorry, soluble on the basis of solubility, we can classify them as a fat soluble vitamins because they are heavily present in your fat, and water soluble vitamins easily excreted from the urines. Okay, so that is the panga. Okay, with water soluble vitamins. So we will start studying both one. Basically, first we will know their properties of the vitamins. Fat soluble vitamins, already you might be knowing E, D, E, and K. They have common properties like fat soluble, require bile salt for absorption, is stored in liver, stable to normal cooking condition, and excreted in feces. So why everyone was, in the corona time that was infected was talking about they are lacking some vital vitamins. Why they were talking? Because this is stored in liver, right? And corona was attacking because every toxic component, liver is basic organ that they are dealing with. Okay, so that's why, and this was totally compromised, and these vitamins were often reported to be lacking heavily. And not only this, water soluble vitamins also, like vitamin C. So even myself once get trapped, not heavily but little bit with the corona. So I like vitamin D, vitamin K, right? And mostly girls are talking about their hair. Hair are damaging every day when a lot of large huge amount. This is because of vitamin E. So we will not study only for the CSIR. We will also study for our living style. Yes, sir. So, so vitamins, what you can define is a very small organic molecule present in diet, right? And most of the vitamins are not synthesized in the body. That is the biggest problem. They are not synthesized in the body, right? So what we can do, we must take from the diet, right? So few vitamins are synthesized in the body. We have to know them, and there are some precursor, and these precursor form of vitamins called as the provitamins. So provitamins, and one of my friend was talking to open this industry, large scale industry for production and selling of the vitamins at large scale. So this is a multi-billion market, vitamin production. So if you're a life sciences student, you better understand, and you have better chances to grow all these vitamins by the E. coli, all right? Because you know the fermentation technology, you can grow these E. coli modifying their genes, and they can produce large amount of vitamin C, D, E, K, and other vitamins also. So you can sell them for the huge profit. Now you can see vitamins, already I have told you, water soluble vitamins cannot be stored in human tissue. That is the biggest problem. Their excess amount is secreted with urine. Okay. And what about the fat soluble vitamins? Significant amount of fat soluble vitamins can be stored in adipose tissue and liver. Synthetic vitamins are identical to natural vitamins. Basically, in current market, you can see synthetic vitamins are there. These are purely chemicals. Okay, whatever the vitamins you are asking from the medical store, they are giving you for 20 rupees 10. But in the natural vitamin, this is not possible because the cost will be higher. So once growth and development are completed, vitamins remain essential nutrient for the healthy maintenance of cell, tissue, and organs. And water soluble vitamins, they are member of vitamin B complex mostly,
and some are vitamin C. So whatever we are thinking, we are in the term of B and C. Okay. So water solubility, vitamin B12, except vitamin B12, others are not stored. This is very important. Except vitamin B12, and often you can see the vitamin B12 is often lacking in the body. So from where you will get this, we will discuss later on. These are unstable in the normal cooking, means you cannot cook it, and they are excreted easily in the urine. So why vitamins are very helpful in the term of health aspects? They build up resistance of the body against disease, prevent and cure various diseases caused by deficiency, help the digestion and utilization of mineral, salt and carbohydrate, stimulate and give strength to digestive and nervous system. Means all type of health aspect is covered. Help maintenance of proper health and normal growth. Right, so fat soluble vitamins are required for normal color. This is very important. Often CSIR is focusing on this. How vitamins is essential for normal vision, blood clotting, bone formation, and maintenance of membrane structure. This is basically the focus area of CSIR. So most of the water soluble vitamins are coenzymes. So this is also a kind of focus area. Right, we have discussed a lot of enzyme in the metabolism part, and these metabolism are very, very important. Every examination is asking. Okay, every examination is asking about that. So coenzyme are prosthetic group. They are the part of several enzyme. Without them, they are not able to act. Vitamin A and D, they are a part of hormones also, steroid hormones, right? Deficiency of fat soluble vitamins produces night blindness, right? And skeletal deformation, hemorrhage and hemolysis. So this is a big story. This is more lengthy than nucleotide part. So be ready with the notebook, because what is the success? Success you can define. You must know what other people don't know. Okay, that is kind of CSIR success. So deficiency of water soluble vitamins produces these diseases often asked in the CSIR: beriberi, glossitis, pellagra, microcytic anemia, megaloblastic. This is very common question: megaloblastic anemia and scurvy. Last year you will be surprised, they were asking about the scurvy. They given the symptom and they were asking just simply what this kind of disease may be. So some vitamins analogs are used as drugs. We will study it also. Very, very important. Like folic acid analogs are used in anti-cancer agent and as antibiotics. Moderate consumption of some vitamin is found to decrease occurrence or severity of some disease. For example, carotenes, vitamin E, vitamin D consumption at moderate level reduces incidence of cancer and cardiovascular disease. तो सिद्धार्थ शुक्ला यही सब काम गड़बड़ करता था, ये विटामिन लेता नहीं था तो इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई. विटामिन डी और विटामिन ई यंग जनरेशन में काफ़ी कम है. ये एक नॉर्मल रिपोर्ट में बात आई है. जो खास करके अपनी बॉडी को लेके, बॉडी शेप को लेके ज़्यादा परेशान रहते हैं तो वो विटामिन को इग्नोर कर देते हैं. दे आर मोस्टली ऑन द प्रोटीन डाइट. तो फैट मिस हो गया तो फैट मिस हो गया तो सारे विटामिन आपके चले गए, है ना. तो आपको जो नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की है, ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में जान थोड़ी देना भाई. थोड़ा कम सुंदर दिखो लेकिन जिंदा रहो, है ना, क्योंकि ये बॉडी मेटल की है, स्टील की नहीं है. Healthy हाँ, हेल्दी रहो, मेंटली फिट रहो, अंदर से सुकून होना चाहिए. अंदर से आंख मूंदो तो कोई घबराहट न फील हो, है ना, मन में शंका न हो, बहुत सारी बातें ना आती रहे. सुकून का मतलब सुकून है.
जब जो मैच होता है ना, मैचिंग मतलब बॉडी और माइंड एक पॉइंट पे मैच करते हैं, शांति, बॉडी शांत है, माइंड भाग रहा है, तब भी आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। माइंड स्लीपिंग है और बॉडी भाग रहा है, तब भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगी। देयर शुड बी बैलेंस, मतलब उतना ही काम लो जितना हैंडल कर सकते हो, उतनी बात सुनो जितना बर्दाश्त कर सको, उतने ही काम करो जितने में तुम रिजल्ट दे सको। पढ़ाई तो हमने 24 घंटे करी, रिजल्ट कुछ नहीं आया। छोटम विटामिन वॉज पायन बाई कश्मीरी ऐसे याद कर लो, कश्मीरी फंक, है ना। एंड in 1912, when scientists trying to isolate fat soluble factor B, they discovered a substance containing nitrogen which was chemically an amine and which was in therefore named as life. Vitamins means life. Okay, so this is a little bit historical aspect. And first isolated vitamin was vitamin B1. तो जैसे जैसे B1 B2 तो आप पूछोगे कभी कभी क्वेश्चन कि ये नाम कैसे पड़े, B1 क्यों कहते हैं, B2 क्यों कहते हैं, B3 क्यों कहते हैं, राइट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, है ना। जो पहले डिस्कवर हो गया 1 कर दिया। तो कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी सिग्निफिकेंट अमाउंट रिड्यूसेस सीवियरिटी ऑफ कोल्ड। अभी देखो सीजन आ गया, कितने लोगों को कफ एंड कोल्ड हो रहा है ना, बीमार हैं सिर दर्द पकड़ रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। ऑल द सिम्टम्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी। इस समय मुसब्बी का जूस खूब पीना चाहिए सबको, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने आज पिया था शाम को है ना, मैं खुद ही मुसब्बी ले आया था मार्केट से और जूसर में डाल के उसको प्योरली पिया, क्योंकि मार्केट में पता नहीं गिलास उनके कैसे होते हैं, बर्तन कैसे होते हैं, कैसे लोग आते हैं, and that is an issue. एक्सेसिव विटामिन सी लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ले सकते हो, देयर इज नॉट मच वरी, बट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इज ए वेरी वेरी टॉक्सिक। विटामिन सी से नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन लीड्स टू टॉक्सिसिटी। Vitamin B12 very important, as we have discussed. Folic acid and vitamin B12 are beneficial to coronary artery disease patients. जिनको जरा भी प्रॉब्लम है उनको रेगुलरली फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी लेना चाहिए. They lower plasma homocysteine level also, right? And water soluble vitamins that dissolve in water, because our body is purely water, है ना. 5 to 10 liter water per day is required. These vitamins can move through our body pretty easily, and they can also be flushed out by the kidney. So that's why there is no worry if you are taking excessive vitamins. And water soluble vitamins, there are 2 categories: vitamin B complex and vitamin C. How many of them? This is 8 one. 8. This is 8. So you can write down B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. 1, 2, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, right? 6, 7, 8 नहीं है, 9 and then 12. Okay. So how you can remember it? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 12. बात बनी नहीं अभी उसको ऐसे ही याद करो. B1, B2, B3, B5, B6, B7 and B9, B12. 3 लाइन में बना के याद कर लो. देयर आर 8 विटामिन बी, जबकि 12 तक लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि B1 से B12 लिखा है तो 12 विटामिन. दिस इज 8 विटामिन एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन. यू कैन गो थ्रू एंड दिस इज द समरी ऑफ एवरीथिंग. Vitamins, water soluble, fat soluble. Vitamin A, that is called the retinol.
beta carotenins. Their biochemistry is very, very important. Very important. Their biochemistry very important. Their biochemistry very important. तो बचा क्या? Their biochemistry very important. Right? तो all they can ask you anything. जैसे ये पूछा था कि जो विटामिन डी का मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है, D3 है या D2 है. विटामिन ए में पूछा था कि विजन इज अफेक्टेड बाय सिस रेटिनॉल और ट्रांस रेटिनॉल. मतलब लाइट पड़ती है तो क्या कैसे हम देख पाते हैं, सिस से या ट्रांस से. ठीक है. विटामिन ए उतना फोकस नहीं है, विटामिन की उतना, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आपको मैक्सिमम चीज़ें तो यहीं कवर हो गई. राइट. फॉलिक एसिड ऑलरेडी आपने देख लिया कि PLP है ना, फॉलिक एसिड, पैडॉक्सिल फॉस्फेट. यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है पैडॉक्सिल फॉस्फेट PLP. राइट. तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है. पाइडॉक्सिन वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, कोएंजाइम. फॉलिक एसिड, विटामिन 12 ऑल्सो पार्ट ऑफ कोएंजाइम. नियासिन, बायोटिन स्पेशली है ना, पैंटोथेनिक एसिड, ये कोएंजाइम के पार्ट हैं. ठीक है. तो एक मतलब ओवरव्यू यही होना चाहिए आपके दिमाग में. यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ ओवरव्यू इन योर माइंड. क्लियर. So non-B complex, ascorbic acid, B complex, energy releasing, hematopoietic and others. So water soluble, fat soluble. What is the basic difference? Absorption directly to blood, right? And this fat soluble lymph via CM. Transport, this is free, this require carriers. Storage, circulate freely in cells with fat. Excretion in urine, this is stored with fat. Toxicity possible with supplements, luckily with supplements. The requirements every 2-3 week, every week. Okay. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर. बहुत इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई सब याद हो जाए यहीं पे, है ना. स्टोर्ड विद फैट. एक्सक्रीशन पार्ट ध्यान रखना. टॉक्सिसिटी किस में है? टॉक्सिसिटी फैट सॉल्युबल में ज़्यादा है क्योंकि वो स्टोर्ड हो जाता, निकलता नहीं. कैरियर भी रिक्वायरमेंट है. कौन सा कैरियर? तो ऑल दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क. स्ट्रक्चर का ये ओवरव्यू है, मैंने इकट्ठे कर दिया था बट अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे इसको. सो ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच विटामिन्स एंड विच कोएंजाइम. एक जगह पे मैंने कर दिया, स्लाइड नंबर 3, है ना. क्विकली यू कैन रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. TPP कोएंजाइम थायामीन. TPP कोएंजाइम थायामीन राइबोफ्लाविन से डिराइव होते हैं. FAD FMN. ऑफन यू नो दिस नेम, है ना. FAD FMN जब भी पूछेंगे तो किससे डिराइव होता है? राइबोफ्लाविन से. देखा ना, आज TPP किससे डिराइव होता है? थियामिन. कंफ्यूजन नहीं करना है ना. तो ऐसे भी सिमिलरिटी इंडेक्स से याद कर लो. थायमिन स्टार्ट विथ T, TPP स्टार्ट विथ T. ठीक है. और मॉर्निंग स्टार्ट विथ T, कोएंजाइम इज TPP, है ना. कविता बना लो. और मॉर्निंग स्टार्ट विथ T एंड कोएंजाइम इज TPP, thiamine. Riboflavin, FAD FMN is riboflavin. FAD FMN, riboflavin. NAD NADP, niacin. Vitamin B6, PLP. Vitamin B6, PLP. Folate, GHF. Pantothenic acid, कोएंजाइम A. बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड कौन सा विटामिन? कोएंजाइम. पेंटोथेनिक एसिड इधर बताया था ना. B6 तो हो गया, B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लाविन हो गया,
फॉलेट, विटामिन B12 इधर हो गया, बायोटीन, बायोटीन है। B7 लेट क्या शायद? नहीं, B7 तो होते नहीं। लेट मी चेक, जस्ट 1 मिनट। पेंटोथेनिक एसिड वही नाम है, कोई अलग से नाम नहीं है, राइट? देयर इज नो अदर नेम। ओके, हाँ सर। बायोटिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन B3, राइबोफ्लेविन B2, थायमिन B1, राइट? पाइडॉक्सिन B6। दे हैव नो अदर नेम्स। B7 की तुम बात करी, बायोटिन है वो, है ना? B7 बायोटिन। और आपने क्या पूछा था? फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड B9, अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन E, कोबालामिन B12, है ना? कॉल्सिफेरॉल, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पेंटोथेनिक पूछा था ना? विटामिन A, विटामिन B1, थियामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइडॉक्सिल फॉस्फेट, नोट कर लो, B7 बायोटीन, B8 है नहीं, राइट? तो देन B9 फॉलिक एसिड। यस सर, हाँ। ये नो पेंटोथेनिक एसिड समझ में आ गया, ये है विटामिन B5। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही, आवाज आ रही है? इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग आरबीसी, गेटिंग ऑडियो। निकोटिनिक एसिड, ये नोट, वही है। पेंटोथेनिक एसिड समझ में आ गया, ये है विटामिन B5, ओके? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग आरबीसी। मनीषु विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड, NAD वही है, NAD हेल्प विद डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑडियो आ रही बेटे? ओके? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। नहीं सर, ऑडियो क्लियर मिल रही है? अभी बीच में नहीं Any आया, issue? अभी लास्ट में आया बस आवाज। अभी ठीक है? अभी ऑडियो आ रही है रखिए। हाँ लेकिन कट रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस। ऑडियो आ रही बेटे? हाँ अभी ठीक है, हाँ लास्ट में ठीक है। ठीक, चल। तो नाउ इट्स क्लियर, पेंटोथेनिक एसिड इज B5। अभी ठीक है? हम लिख लो, दिस इज B5। अभी ऑडियो आ रही करेक्टली? बायोटीन का भी नाम था ना? ठीक है, हाँ, चलो। बायोटिन B7। तो नाउ इट्स क्लियर, पेंटोथेनिक एसिड इज B7, B5, ओके? बायोटीन यहाँ पे लिख लो, दिस इज B5। ये बड़ा अच्छा स्केल, दिस इज वेरी गुड। बायोटीन का भी नाम था ना? हाँ मेरे को, हाँ फिर से भूल गया मैं। एकदम समराइज हो गया सब उसमें। हाँ, एक अच्छे आगे ज्यादा बायोटीन B7, हाँ राइट, सीधे पॉइंट पे है। बायोटीन B7, पॉइंट विटामिन B9। ये बड़ा अच्छा स्केल है, दिस इज वेरी गुड, है ना? फॉलेट, नहीं वो स्टोरी पढ़ेंगे। हाँ एक अच्छे आगे, ज़्यादा टाइम पास वाला नहीं। आप सीधे पॉइंट पे हो, टॉक टू द पॉइंट। विटामिन B9 है, नहीं नहीं, वो स्टोरी पढ़ेंगे, हेलो, हम लोग तो रिसर्च वाले हैं, पढ़ेंगे लंबी स्टोरी, बट थोड़ा सा दिमाग में कुछ आइडिया तो हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो बन जाए। फिर चला गया, चलो अभी मुझे ना ये करना पड़ेगा। अभी वॉइस कट रहा है, तो फिर वाईफाई दूसरा कनेक्ट करो, क्या बोलते हो? वॉइस अभी ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो। तो नहीं हो रहा है, हाँ क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ ठीक। और TPP राइबोफ्लेविन हो गया। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन था? राइबोफ्लेविन ये था ना, विटामिन B2, ओके? दिस इज विटामिन B2, थायमिन B1, राइट? B3 कौन सा था? B3 हाँ थायमिन B1, हाँ थायमिन है B1। नियासिन, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड NAD वाला है, विटामिन B3 ये है, विटामिन B3 नियासिन। अभी अच्छा ऑर्डर बन गया ना, B1 B2 देन B3 B6
B9 B5 बायोटिन का बायोटिन है ना, B2। हम लोग इसको सीरीज में कर हाँ। लेते हैं, है ना। B1 हाँ, थायमिन B7 B12 TPP। B2 हम लोग ऑर्डर में कर लेंगे, भले ये इस ऑर्डर में ऑर्डर। B5 कर देंगे पहले, B2 के बाद B2 के बाद B3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर B6, फिर B9। TPP। हाँ, हाँ फोलेट भी कोई एंजाइम है ना। हाँ। फोलेट कौन सा एंजाइम है? हम्म, फोलेट मैंने देखा था B9, B9 है, B9 ये लिख ही दिया, ये तो ये ठीक है। बायोटिन बायोटिन राइट, बायोटिन का तो कोई एंजाइम है नहीं ना। लेट अस चेक, बायोटिन का नहीं है। B7। 7 यस, वेरी गुड। देखो अब बन गया ना अच्छा ऑर्डर। हाँ B7 हम लोग एक स्केल बना देंगे, जैसे स्केल मेजरमेंट के लिए होता है ना, तो नाम B1 B2 यहाँ पे ऐसे लिखेगा, ऐसे ऊपर नीचे करके B1 B2 देन B3 B4 B5। आज दीपांशी को मैं वेट ही कर रहा था, B1 B2 B3 B3 के बाद B5 ना, B5। B2 B3 B5 B6 B7 B9 right, and हाँ, then B9 and then B12। B12। ये पूरी स्केल बन गई। अब इस स्केल में ऐसे याद कर लेंगे, स्केल तो इजीली बना लेंगे। देन वी कैन राइट B1 एज ए TPP, B2 एज ए FAD FMN, है ना। ऐसे हम लोग को याद कर लेंगे आसानी से। B3 क्या हो गया? NAD। हाँ, इजीली देखो याद हो जाएगा। B5 में क्या आ गया? कोई। यस। B6 ऊपर चला गया, B6 हो गया PLP। B6 PL। B7 बायोटिन। B7 बायोटिन। B9 फोलेट का DH। फोलेट। THF बाप रे, बहुत पूछा गया है ये, अलार्मिंग है, एकदम अलार्मिंग है। PLP एंड THF ये आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म तो इसके बिना होता है। हाँ, इसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, इसलिए ये जान लो कोर है। बायोकेमिस्ट्री देखो हर आदमी का स्ट्रांग होना चाहिए। मैं समझता हूँ लाइफ साइंसेस के लोग पता नहीं क्या करना है, सबने जैसे भारत पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया सारे लाइफ साइंस सब्जेक्ट में, ये बॉटनी है जुलॉजी है, नहीं, कोर एरिया होता है। देखो BSc MSc PhD मिला के इनको टोटल करना चाहिए इकट्ठे, है कि नहीं। BSc 3 साल का, 1 साल का MSc और बाकी का टाइम 3 साल का PhD। हाँ, तो अब क्या होगा, कोर एरिया पढ़ाओगे। जैसे BSc 3 इयर्स में आपका कोर एरिया चलेगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री कोर एरिया, मॉलिक्यूलर कोर एरिया, है ना। मतलब ये जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक आप कोर एरिया मान के पढ़ाओ, तो BSc में ही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या कमाने के लिए CSIR कर दिया, इधर कर दिया, नहीं, पूरा कोर एरिया लेके चलो। रिसर्च बेस्ड पूरी इंडस्ट्री बनाओ। एजुकेशन सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो कोई विद्वान ही नहीं है उसकी, बराबर, है ना। कोई ऐसा होता जो लाइफ चेंजिंग, यही है एजुकेशन। ही तो इतना पैसा खर्च कर रहा है। आप देखो BSc से लेके MSc से लेके मिलता क्या और कितना खर्च करता है। MSc किसी यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए पर ईयर, जैसे अक्चिका MIT यूनिवर्सिटी में तो वो 1.5 लाख से मतलब खाली फीस देती है, 3 लाख तो फीस है उसकी। हाँ, बाकी सोचो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस अगर मान लो तो हॉस्टल सब चलाओ तो हाँ, सब मिला के 3 लाख पर ईयर हो गया, बराबर। 3 लाख 3 मिला क्या, कोई जाएंगे। रिसर्च में अगर पूछेगा, मतलब बच्चे की हैरेसमेंट कितनी ज्यादा है। अगर आप मान लो 3 साल का BSc चलाते हो, बच्चा अपना कोर एरिया आइडेंटिफाई कर लेगा, MSc में स्पेशलाइजेशन में डाल दो उसको, भाई तू तेरा इंटरेस्ट जो है वो ले, इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जाना बायोइन्फॉर्मेटिक्स जा, जेनेटिक्स में जाना जेनेटिक्स में जा, जो मर्जी पढ़।
पीएचडी उसी स्पेशलाइज्ड, फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी अच्छे से पढ़ाओ। जैसे जेएनयू क्या है, वेस्टेज कर दिया, लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस है ना, सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जिसमें सारी ब्रांचेज हो, सारी रिसर्च हो, कोर एरिया में हो, स्पेशलाइज्ड एरिया में हो। तो इतना थॉटफुल नहीं है कोई। अब हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, 20 years हो गया, देन आई एम रियलाइजिंग कि ऐसा होना चाहिए, हमारा वेस्ट कर दिया। हाँ, मुझे मास्टर्स में भी लगता है कि ऐसे वो जो कोर्स होता है वो थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि बच्चों को जैसा सब्जेक्ट चाहिए वो लेके पढ़ सके। ऐसा कह रहा है बीएससी में खत्म कर देना चाहिए सारा जो एमएससी में पढ़ाते हैं, वो सारा कोर बीएससी में। हाँ, एमएससी में यंग माइंड आता है ना, हाँ, लाइफ और करियर के लिए बहुत परेशान होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वही आपका भी टाइम है ना। तो अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तालिबानियों से, तो लाइफ साइंसेस को पढ़िए और पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, क्लासिफाई करके पढ़ाइए। यूएसए ने मॉडिफाई कर लिया, इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? यूएसए ने मॉडिफाई कर दिया, उसने बीएस एमएस पीएच रिसर्च कर दिया, बीएस बीएससी को बीएस कर दिया, एमएस प्लस रिसर्च। यानी अगर आप बीच में एंट्री मारना चाहो तो एमएस बाय रिसर्च होता है, वो भी आप जब एमएससी पीएचडी कर लेते हो तब एलिजिबल होते हैं इसके लिए वहां की। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ही नहीं मैच करता है, ये देखो। सो यू कैन सी B1, ये पूरा चार्ट बना है ना, ये बड़ा अच्छा चार्ट हम लोग को बन गया। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। हमने ये ब्लैक लाइन खींच देनी है ये, और अलग अलग कलर की ब्यूटीफुल लाइंस ये कर दो, ये तो ये फिर अच्छा जगह B1 TTP, फिर यहाँ पे अलग कलर कर दो, कलरिंग से पढ़ा करो। FAD FMN हो गया, इधर अलग कलर कर दो, थोड़ा ग्रीन NAD, कोएंजाइम को रेड से कर दो, बड़ा ब्यूटीफुल है कोएंजाइम। ये TCA साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये कोएंजाइम अच्छे से कर दो। और सबसे रेड वाला कौन सा है बताओ? रेड वाला TPP चला गया, बस कर दिया, ओ सारा डिलीट हो गया, पता नहीं। अच्छा वो इरेज, और चलो रिकॉर्डिंग कोई नहीं, फिर से बना देंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? नाउ दिस इज क्लियर, व्हाट टू डू, व्हाट टू राइट। इस पे ज्यादा फोकस है, थाइमिन TPP और वो बना के याद करो, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन भी है। B1 ऊपर, B2 नीचे, B3 ऊपर, B5 नीचे, एंड देन B6 ऊपर, है ना, B7 नीचे, B9 ऊपर, B12 नीचे। कोई छोटा तो नहीं? 1 2 3 5 6 7 9 B1 B2 सब हो गया। हाँ, नियासिन क्या था? B3 फोलेट B5 है ना, नहीं फोलेट 9। अच्छा हाँ 9 5 वो पेंटोथेनिक एसिड। हाँ कोएंजाइम, ठीक है ना। रान B6 हो गया, 9 हो गया, बायोटिन है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये बताया दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। 4 है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, दिस 4 फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, 4 प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए कितने हो गए? 6 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, 6 ये कपिल देव है। 6 है एनर्जी टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शन, ये 6 चाहिए। प्रोटीन के लिए 4 एंड फैट मेटाबॉलिज्म 5। तो ऑल इज यूनिक, देख रहे हो, कोई भी मैचिंग नहीं है। प्रोटीन का 4 है, फैट मेटाबॉलिज्म 5, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म 6।
अरे यार, फॉरगेट रिकॉर्डिंग। नहीं सर, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग। अरे मेरी दूसरी भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वॉइस रिकॉर्डिंग अलग से करता हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ ओके, पे हाँ, ऑडियो खराब हो जाती है। ओके So ओके। voice clarity is very voice clarity should be very good when you are watching only videos. बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो सिर्फ वीडियो डिपेंडेंट होते हैं, तो they need very clear voice. So vitamins and minerals are required for proper metabolism, do not directly provide energy, are necessary for obtaining energy from the macronutrients, often function as coenzyme. So what is enzyme? You know, they are involved in the acceleration of rate of reaction, but coenzyme molecule that combine with an enzyme to activate it, right? So what vitamin? Already discussed, this is organic molecule. So now we will go for the detailed study, है ना. डिटेल स्टडी में काफ़ी पॉइंट्स हैं, एंड उसके पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि वो मुझे बड़ा हेडेक लगता है स्टडिंग इन द डिटेल्स. B1 थायमिन, B1 थायमिन तो हमने देख लिया था. TPP यहाँ पे हमने बात करी थी, राइट. सो TPP इन्वॉल्व इन, ये याद करना है, पायरुवेट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में था वो. अच्छा, वो याद करना हम लोग भूल गए, है ना, कि वो 6 कौन थे और 5 कौन थे, राइट. यहाँ पे पढ़ा तो लेकिन भूल गए. TPP कार्बोहाइड्रेट, FAD कार्बोहाइड्रेट, FMN कार्बोहाइड्रेट, वायस आ रही है ना, NAD कार्बोहाइड्रेट, COA कार्बोहाइड्रेट, B12 कार्बोहाइड्रेट. So these are carbohydrate metabolism. फैट मेटाबॉलिज्म, ये कभी भी पूछ सकते हैं कि सब में कॉमन कौन सा है, इन प्रोटीन, इन कार्बोहाइड्रेट, इन फैट, व्हाट इज द कॉमन. तो आप देखोगे NAD इज द कॉमन. नो, नथिंग इज कॉमन. B12 भी 2 में है, 3 में है, तीनों में है. B12 भी है, 2 हो गया, ठीक है ना. तो B12 एंड NAD इज द कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म. और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए अब जो कि 2 तो आपने निकाल ही लिया कि 2 सब में कॉमन है, तो अब आपके लिए इजी हो गया. बाकी जैसे यहाँ पे 4 याद करना, यहाँ पे 2 याद करना, बाकी यहाँ पे 3 याद करना, FAD, FMN, कोएंजाइम. ये एनालिसिस थोड़ी रह गई थी. सो विटामिन के फीचर्स हैं यहाँ पे. विटामिन नॉट सिंथेसाइज्ड विद बॉडी, फॉर एग्जांपल exceptions are vitamin B3 which active form NADH, NADPH can be synthesized from tryptophan. ये नोट कर लो, NADH can be synthesized from tryptophan. Tryptophan and vitamin D3. ओके, विटामिन D3. तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी यही है, D3, राइट. इसको बोलते हैं कोलोकैल्सिफेरॉल. कोलेकैल्सिफेरॉल and derived from 7 dehydro cholesterol. Amount of those one and vitamin partially synthesized by intestinal microflora. हाँ, ये भी important है. Intestinal microflora. This is B1, B2, B3, B5, B6, BK. Right? Vitamins are not plastic metal. Exception is vitamin F. Vitamins are not energy source. Vitamin F. Vitamins are essential for all vital process and biologically active in very small quantity. Already we have discussed. ये थोड़ा important है. They can be used for medicinal purpose. For high doses for diabetes mellitus. Diabetes के केस में B1, B2, B6 you should give high dose. Cold and infection में vitamin C. अस्थमा में vitamin PP. अल्सर में some new vitamin like vitamin
U, substance U, vitamins like substance U and nicotinic acid. Hypercholesterolemia, NAD, hypercholesterolemia, निकोटिनिक एसिड, राइट, NAD. अभी ठीक है ना, कट तो नहीं रहा है वॉइस? क्लियर है? तो हम वहां पे पढ़ रहे थे लीवर आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन vitamin metabolism, right? Liver is important site for vitamin storage. Liver produces bile for absorption of fat soluble vitamins. So few vitamins can be stored. Lack of vitamins quickly leads to deficiency disease, that is called as the avitaminosis. Avitaminosis, clear? This is avitaminosis. Okay, I think this is clear. Yes, sir. Right. So avitaminosis, these often affect the skin, blood cell, nervous system. Hypervitaminosis means high dose of vitamins, and in case of vitamin A and D, normally excess vitamins are rapidly excreted with the urine, but fat soluble vitamins are toxic, already discussed. Now we are coming to this. Okay, this was, you know, so vitamin B1, what is the function, important function? Carbohydrate metabolism. In one shot you can say carbohydrate metabolism. TPP required in pyruvate and alpha KG dehydrogenase, TNS ketolase, polydefined function in the nerve conduction. ठीक है, तो हाइपो वाइटामिनोसिस के कंडीशन में व्हाट आर द सिम्टम, क्योंकि नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, तो बेरी बेरी पॉलीन्यूराइटिस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेजन्स. तो मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव कंपोनेंट हम पढ़ लेंगे वन बाय वन, ताकि कुछ भी छूटे ना, कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी आंसरेबल. B2 राइबोफ्लाविन, functional part of coenzyme FAD, FMN and in oxidation reaction. Epithelial mucosa, cutaneous, corneal lesion, lesion of corner of mouth, lips, tongue and dermatitis. So basically this is for the epithelial and mucosa system. B3 niacin, nicotinic acid, nicotinamide, functional part of the coenzyme NAD, NADP in oxidation reaction, right? Oxidation reaction. B3. Okay, so their causes pellagra, photosensitive dermatitis, glossitis, tongue inflammation, हेयर लॉस को क्या बोलते हैं? एलोपेशिया, टंग इन्फ्लेमेशन, ग्लोसाइटिस. स्वेलिंग, एडेमा. कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ, दिस इज गुड आइडिया, है ना? अभी ठीक होगा. हाँ सर. ओके. So tongue inflammation, alopecia, hair loss, edema, swelling, diarrhea, depressive psychosis, aggression, ataxia, lack of coordination. Right? जैसे कहते हैं ना, फोकस नहीं बन पा रहा है हमारा, भूल रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, वीकनेस हो रही फील, सारे ये आजकल ना, जी किसी से भी पूछोगे कोरोना टाइम में ना, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, है ना? कि जैसे किसी को वैक्सीन लगी तो कहेगा एडेमा हो गया, हमें डायरिया थोड़ी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, साइकोसिस हो रही है, एग्रेशन आ रहा है, एटेक्सिया हो गया. एटेक्सिया मतलब लैक ऑफ फोकस, डिमेंशिया, वीकनेस, सारे ये लोग बोलते हैं. मतलब ये B3 का स्पेशली ये प्रॉब्लम है, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम थी. ये जैसे सुशांत सिंह मर गया तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? वो सिगरेट बहुत पीता था और वो अफीम भी बहुत खाता था. मतलब उसकी जो रिया थी
है ना। रिया के ऊपर कल हमने कविता बनाई थी ना, क्या था? हाँ सर, वो प्रेयस सिंड्रोम। हाँ, कुछ सिंड्रोम था। हाँ तो रिया ने उसको इतना नशा करा दिया था कि उसका B3 गायब हो गया, तो दैट्स वाई इसको सारी प्रॉब्लम हो रही थी। यूरिया इफेक्ट हो रहा था हाँ हाँ, यूरिया, यस यस, एटेक्सिया, सारा उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी जो मैंने देखा। नशा करने वालों में विटामिन की तो बहुत भारी कमी होती है, बहुत भारी। B5 की कमी से, पेंटोथेनिक कमी से नमनेस इन टोज, मुझे भी विटामिन लेना पड़ेगा, आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है टोज में। सेंसेशन इन द फीट, डिफीट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरनल ऑर्गन्स, अर्ली ग्रेइंग, हेयर लॉस, डिसऑर्डर ऑफ स्किन, मतलब बीमारी पड़ लो तो लगता है कि ये सब हमारे अंदर है। डिप्रेशन, मूड, फैटिग, है ना। तो बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ कोएंजाइमी मेटाबॉलिज्म, कोएंजाइमी रिलेटेड, यानी TC साइकिल, क्रेब्स साइकिल, एंड दे आर आल्सो कोएंजाइमीज एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन। पूछ रहे थे ना कि विच वन इज द कैरियर इन द फैटी एसिड, तो दिस वन इज द कैरियर, दिस वन इज द कैरियर protein in fatty acid metabolism. Okay, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यही कैरियर है, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। क्रैक्स हो जाते हैं ना लिप्स में, कोने पे, विटामिन B5 की कमी से बाल घुंघराले होने लगते हैं। आजकल लोग कलर ही कर ले रहे हैं। देखो, विटामिन B की कमी से घुंघराले बाल होने लगे तो लोग कलर करने लगे। विटामिन किसी ने नहीं कहा कि खाओ, बल्कि वो फैशन में आ गया है। तो जो कमी हो रही है उसको लोग फैशन बना ले रहे हैं। लास्टली कोरोना जैसा छोटा सा भी वायरस सबको मार डाल रहा है। दिस इज द पैथेटिक वे। ये मेरे ख्याल से चार्ट बड़ा अच्छा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा वो एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। व्हेन वी विल स्टडी इन द डिटेल, चार्ट में सारा बिल्कुल सामने है ना। ऐसे तो फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा विटामिन और क्या। B5, B6, PLP ट्रांसएमिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन, ये अभी हमने पढ़ा था, तो कितना आसान हो गया याद करना। B6, PLP ट्रांसएमिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन एंड ग्लाइकोजन फास्फोलिस, यानी यूरिया मेटाबॉलिज्म में भी रोल है इसका और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी, सीधे सीधे। तब आप देखो, डर्मेटाइटिस ऑफ आईज, नोज, माउथ, मेंटल कंफ्यूजन, ग्लोसाइटिस, टंग का स्वेलिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कन्वर्जन ड्यू टू लैक ऑफ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर गाबा। गाबा। चले नेक्स्ट। तो ये 6 के बारे में बात कर ली, B1, B2, B3, B5, यस, B6, राइट। ये वही स्केल वाला चार्ट है जो हमने बनाया था वहां पे, है ना। ऑर्डर में है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं। तो बायोटीन, हाँ, B7, कोएंजाइम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। B9 folic acid, functional part of the coenzyme, THF in transfer of one carbon, already we have discussed. मेगेलोब्लास्टोएनीमिया के बारे में पूछा हुआ है सर, तो ये दोनों लिंक हैं, THFA, B9 folic acid and megaloblastic anemia, all three are linked. B9 THFA है एंड इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में ये कार्बन ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये पूरा बनता नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इज द एनीमिया। राइबोन्यूक्लियोटाइड आपने देखा था ना, THFA का क्या रोल है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, है ना। आपको याद है ना, कल कविता बताई थी, कौन सी बस आई थी, है ना, किस गली में जाना है, कहाँ पे बाय बाय करना है, तो वहाँ पे THF का रोल था, एस्पार्टिक एसिड का रोल था, ग्लूटामाइन का रोल था, है ना, ग्लिसरीन का रोल था। बोलना नहीं है, ध्यान रखना।
देखो चालाक वही है जो इसको ये समझ में आ जाए कि मेरा ऑलरेडी बीएससी एमएससी करने में काफी टाइम वेस्ट हो गया है, क्विकली यू हैव टू एक्ट ऑन एंड टू क्वालिफाई द जेआरएफ। और जो ये बात समझ गया वो डेडिकेट होकर लग जाएगा। अब हमें क्या दिक्कत है, मैं तो टीचर हूँ, देखो एक बच्चा पढ़े चाहे 100 बच्चा पढ़े, राइट, ना मुझे B9 की प्रॉब्लम है ना B7 की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आई एम डूइंग दैट, मैं करता जा रहा हूँ एंड विद दैट सेम एफिशिएंसी। ये नहीं कि एक बच्चा है तो नहीं 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 पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो नाटकबाजी, बिकॉज आई नो दिस थिंग्स कि लाइफ कैरियर इज वेरी टफ टुडे एंड स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट। कंप्यूटर वाले प्रोग्रामिंग करके उनको मिल जाती है जॉब, ठीक है ना, बट बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही टफ है। एक तो नॉलेज भी नहीं है ना, कर कुछ नहीं सकते, प्रोडक्शन अपनी खोल नहीं सकते क्योंकि उनको फर्मेंटेशन बायोलॉजी पूरी आती नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी में कमज़ोर हैं, बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती, याद नहीं होती, पढ़ते हैं नहीं किसी लायक नहीं है बायोलॉजिस्ट, है ना, तो किसी लायक तो बनो भाई। रेटिनाल के बारे में समझो, व्हाट इज द रेटिनाल, एवरीथिंग इज रिटन हियर। अभी डिटेल में मतलब पलटने का ही रहेगा बस। रेटिनॉल विजुअल पार्ट आपको बता दिया, पिगमेंट रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन इन द रेटिना, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन, बीटा कैरोटीन derived from provitamin A is an antioxidant. तो विजन इम्पेयरमेंट, हेमरलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं हेमरलोपिया, एक नया टर्म है, हमने बताया ना, सक्सीड होना है तो वो जानो जो कोई नहीं जानता, तो ये है हेमरलोपिया, हेमरलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस। तो रेटिनॉल की कमी हो जाती है बुढ़े लोगों में तो उनको प्रॉब्लम होती है। जीरो थैलेमिया, केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन, डी कैल्सिफेरॉल, स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ थ्रो इंटेस्टाइनल वॉल मेंटेनेंस, कैल्शियम बैलेंस, मोबिलाइजेशन ऑफ बोन मिनरल, राइट, रिकेट्स पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ऑस्टिमलेशिया बोन डिमिनरलाइजेशन, ऑस्टिएक्टेसिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड डिलेड मिनरलाइजेशन ऑफ क्रेनियल बोन्स ऑब्जर्व इन इन्फेंट्स। टोकोफेरॉल्स एंटीऑक्सीडेंट especially in cell membrane, extremely rare in serious neurologic dysfunction, राइट। तो टोकोफेरॉल ये विटामिन ई, राइट, इसकी वजह से लोग कहते हैं बाल बहुत झड़ता है, ये टीवी में ऐड आता है, क्या ये सच है कि विटामिन ई की वजह से बाल झड़ता है? दिस इज आई थिंक रॉन्ग, है ना, ये कहीं नहीं है साइंटिफिक फैक्ट में कि विटामिन ए से बाल झड़ता है ना और टीवी में इसी को दिखाते हैं कि विटामिन ए मिला दिया है ताकि बाल स्ट्रांग रहे। अरे कैसे भैया, वो तो समझाओ हमें तो ढूंढ डाले, बाल के लिए तो कोई और ही विटामिन था, है ना, ग्रे हेयर वाला जो नहीं डिस्कस कर रहे थे, हाँ ग्रे हेयर के लिए था, कि ग्रे हेयर था, ये था बता रहा हूँ, हाँ विटामिन B5, B3 था, हाँ हेयर लॉस, ये देखो B3 था, नियासिन, ठीक है ना, और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स B5, ये दोनों इन्वॉल्व है। ई का कहाँ से एडवर्टीजमेंट करते हैं मुझे समझ में आता, कौन सी बुक से उठाया उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट बोल के बस देते रहते हैं, क्रीम में मिलाया, शैम्पू में मिलाया, बस नहीं, इतना झूठ बोलते हैं ऐड में, कुछ भी बोलते हैं, यस सर, ठीक है ना। विटामिन ई अंडे में पाया जाता है, उसमें बोलते हैं शैम्पू में अंडा मिला दिया। अरे अंडे में अंडा मिला दिया तो क्या हो गया, बाल को खिला रहे हो कि लगा रहे हो, समझ नहीं आ रही। वो लोगों को वो अब्जॉर्प्शन वाला फंडा ही नहीं पता है, तो बस ऐसे ही मिला के दे दिया। अरे अंडा लगा सकते, हाँ अंडा बाल में लगाओगे तो चावल दाल भी लगा लो सब्जी रोटी भी लगा लो, मक्खियां भी मिलाएंगी, समझ में आ जाएगा बाल कहाँ से खूब इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाना इतना इजी है, और इंडिया के लोग वहां नहीं बेवकूफ बनते जहां उनको सच्चाई बताई जा रही होती है, जहां झूठ बोला जाता होता है। राहुल गांधी के पीछे कितने लोग हैं और 1000 झूठ बोलता है, रोज बेइज्जती होती है, रोज उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होता है झूठ बोलने के कारण। ओह माय गॉड
राहुल गांधी को ना भेज देना चाहिए वहाँ अफगानिस्तान, एक बार हो के हो। उसको बंधक बना लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं सब। आएगा तो फिर देशभक्त हो जाएगा। फिलोक्विनिन, मेनाक्विनिन, ब्लड क्लॉटिंग में देखो विटामिन के का बचपन से ही जानते हैं कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना। डिसबैक्टीरियोसिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ नया टाइप का लग रहा है। डिसबैक्टीरियोसिस, देखो अब वो क्या पूछेंगे इसमें, अब ये तो पूछेंगे नहीं कि रिकेट्स किससे होता है, तो कुछ नया चीज पूछ सकते हैं। डिसबैक्टीरियोसिस क्या होती है भाई, किस विटामिन से होती है, राइट। डिसबैक्टीरियोसिस के से होती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। हीमोरेजिक इसमें नाम है, हीमोरेजिक इज इक्वली रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग, राइट। सो कुछ भी करके गेस तो कर पाओगे एटलीस्ट कि दिस इज रिलेटेड विद द विटामिन के। डिसबैक्टीरियोसिस, डिसबैक्टीरिया सारे फैक्टर से बनते हैं। ये देखो फैक्टर सेकेंड, 7, 9, 10, 14, प्रोटीन एस, ऑल एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये देखो बड़ा अच्छा सुंदर चार्ट है। तो मैं इसमें वो विटामिन में दूंगा जो कहीं विटामिन तुमने सुना नहीं होगा, राइट। जैसे B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B4 नहीं सुना था, कोलिन, है ना। B5 पेंटोथेनिक, B6 पैराडॉक्सिन, B7 विटामिन H, ये पूछा हुआ था किसी ने, CSIR में पूछा था या गेट में पूछा था, मुझे याद नहीं है कि कौन सा विटामिन होता है विटामिन H। विटामिन B7 होता है। B8 अभी तक देखो नहीं पढ़ा था, है ना। विटामिन U इसको बोलते हैं, U। तो ये बड़ा अच्छा सुंदर चार्ट है। बाकी चीजें तो नहीं, चार्ट देख के क्वेश्चन बनाते हैं CSIR के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो इतना किताब पढ़ने लगेंगे तो फिर उनसे क्वेश्चन बन चुका, ठीक है ना। तो विटामिन U, इनोसिटॉल, मायोइनोसिटॉल, है ना। B9 ऑलरेडी क्लियर, फॉलिक एसिड, फॉलिस्टासिन, विटामिन BC एक नया आया देखो, विटामिन BC। एक तो विटामिन C होता है, विटामिन B होता है, अलग होता है। विटामिन BC क्या होता है, वो विटामिन B9। विटामिन B10 भी डिस्कवर हो चुका है, पाबा इसको कहते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड या विटामिन H1। B11 नहीं था, वो भी आ गया। विटामिन T विटामिन T, विटामिन D, एल कार्निटाइन, है ना। तो ये चार्ट ही भी ज्यादा फोकस करके याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। B12 साइनोकोबालामिन है, B13 ओरोटिक एसिड, देखो कल ही पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड एसिड मेटाबॉलिज्म में, ओरोटिक एसिड, राइट। दिस इज अ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। विटामिन ओरोटिक एसिड क्या होता है भाई, कौन से विटामिन से डिराइव होता है। B13, B14 PQQ, पायरोक्विनोलिन, पायरोक्विनोलिन। विटामिन B15 पैंगेमिक एसिड, पैंडेमिक एसिड, लो कोरोना एसिड आ गया। विटामिन B15 पैंडेमिक एसिड, पूछोगी तो सब लोग पागल हो जाएंगे, है ना। तुम एक काम करना, तुम जिस भी ग्रुप में हो ना वो वहां पे डाल देना, लोग महीनों तक ढूंढते रहेंगे, मिलना है नहीं। पैंडेमिक एसिड इज, है ना, वो नाम पूछना जो कहीं ना हो। B4 पढ़े नहीं होंगे ऑब्वियसली, B8 पढ़े नहीं होंगे, B13 है ना, और D में पूछ देना B15 पैंडेमिक एसिड इज व्हाट। अब इनको पता ही नहीं चलेगा, अगर पता भी लग जाएगा तब भी इनको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से डिस्कवर हुआ, किसने किया। ये हमारे किताब में तो होता ही नहीं था। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में कभी ये सब अपडेट ही नहीं होता। मैं तुम्हें दिखाऊं, कल मैंने एक रिसर्च आर्टिकल मैं तुम्हें शेयर करूंगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए। देखो ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल निकाली है, दिखाता हूँ तुम्हें। बहुत जबरदस्त लिखा होता, मतलब मैं इतना खुश हुआ। विटामिन नोट्स नहीं, मैं ओपन ही कर लेता हूँ। बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन्स, मेरे ख्याल से यही है, हाँ यही है। तुम्हें दिखाऊंगा, ये 72 पेज का है, इतना बढ़िया लिखा है इसने, इस राइटर ने।
देखो कहाँ से लिखा है, टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी जनरल मेडिसिन, पूरी बुक लिखा है इसने। इतना इतना पहले देखा तो मैंने कहा है इतना मतलब मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैंने देखा इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा था, और यहीं से वो टेबल है, ये देखो, देख रहे हो, इसने इतना बढ़िया कवर किया सारा। तो मुझे इसका बहुत वो नहीं लगा, बल्कि नहीं लगा पढ़ने में, मतलब इजी वे में लिखा है लैंग्वेज, यू कैन गो थ्रू। ये देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बी ग्रुप, हम लोग B12 तक ही जानते थे, B14, B15, B16, B17, ये सारा आ गया। विटामिन वी ये अभी तो पढ़ाया ही शायद, ये इस स्लाइड में भी डाल देते हैं, क्योंकि ये तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ऑन डिमांड है ये चीज़ें, सबको शेयर कर दो तो लोग परेशान भी होने लगते हैं कि ये क्या डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं बाउंसर जा रहा है। हाँ, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। सच विटामिन आर विटामिन सिमिलर कंपाउंड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन पी, ये तो कि कोई नहीं सुना होगा, विटामिन पी, विटामिन एन नहीं सुना होगा, विटामिन यू बिल्कुल नहीं सुना होगा, राइट। तो विटामिन पी, बायोफ्लेविनाइड्स, फ्लेविनाइड्स, साइनाइडिन, बहुत सारा नाम है इसका, हेस्पेरिन, विटामिन एन लाइपोइक एसिड, विटामिन यू अल्सर से रिलेटेड, जिनको अल्सर हो जाता है, विटामिन ओके, इसने बड़ा अच्छा समझा है ये पूरी केमिस्ट्री इसकी मैंने देखा था, मैंने वहीं से देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया हो कि मैं एक बुक पे रिलाई नहीं करता, राइट, आई एम कीप ऑन डिस्कवरिंग द न्यू थिंग्स, है ना। विटामिन ए जैसे है तो देयर आर 2 पार्ट ऑल ट्रेस रेटिनॉल, ट्रांस एंड 11 सिस रेटिनॉल। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, विच इज द बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट। The biologically active component is retinal and retinoic acid. This is the biologically active component. किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीटा कैरोटीन, this is the structure of beta carotene. You can see how you will identify retinal linked at their aldehyde end, and this is also referred as provitamin A, है ना, प्रोविटामिन फॉर्म ऑफ विटामिन ए या प्रोविटामिन। तो ये पूरी केमिस्ट्री है इसकी, ये बायोकेमिस्ट्री इसका पूछा हुआ था, केमिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। तो लाइट एनर्जी आई रोडोप्सिन, दैट कन्वर्टेड इनटू द बैथोरोडोप्सिन, ल्यूमिनोरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 2, है ना, ऑल ट्रांस रेटिनल। संजोग मनाओ कि अभी तक सीधे सीधे पूछा है कि रेडोप्सिन किस में कन्वर्ट होता है, तो वो ऑप्शन था ऑल ट्रांस रेटिनाल, NaL दोनों ऑप्शन था उसमें, ध्यान देना, ओके। यस सर। हाँ, रेटिनाल कन्वर्ट होता है नॉल में, ऑल देन OL, ठीक है, फिर ये देख पाते हैं। तो बायोलॉजिक बच्चों को बिल्कुल पता नहीं क्यों ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे बहुत आता है, और कुछ फ्री की वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे तो चला। यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहा है आपको समझना चाहिए वो पॉपुलैरिटी के लिए बना रहा है, वो इतने डेप्थ में जाकर डिस्कशन नहीं करेगा क्योंकि जनता भाग जाएगी है ना, कौन इतना पढ़ेगा भाई। अब हम बता देंगे साइक प्रोटीन क्या है। साइक प्रोटीन का रोल है, देखो ये ऑल ट्रांस रेटिनाल बनने में, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें आपका साइक प्रोटीन का रोल है, ये साइक प्रोटीन का रोल है। साइट 26A1 एंड 26B1 दोनों का रोल है, तब ये जाके कन्वर्ट होता है। और जैसे अंधेरा होता है देन आइसोमरेज बिकम एक्टिव एंड इट इज कन्वर्टेड टू द 11 सिस रेटिनॉल। फिर ऑल ओके, ऑल यहाँ पे ऑल देन ऑल, ठीक है। तो इतना कौन पढ़ा है, इतना पढ़ा देंगे तो YouTube चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कभी नहीं कोशिश की कि मैं YouTube, बहुत लोगों ने कहा YouTube चैनल बनाइए, हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, आई एम प्रोफेसर, राइट, आई एम नॉट ए यूट्यूबर
सर्वाइवल के लिए 4 दिन का बना लो कि भाई चलो विटामिन ए से होता है, लाइट बहुत फैंटास्टिक वे में हमने एक्सप्रेस कर दिया, लाइट आती है तो ये होता है, मोबाइल से आंखें अंधी हो जाती हैं, बट फ़ायदा क्या, किसी का CSIR में निकल जाए, गेट निकल जाए, लाइफ कन्वर्ट हो जाए, PhD में एक्सेलेंट हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि हाउ द विटामिन इज कन्वर्टेड इनटू द रेटिनॉल, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। तो नोट कर लो, द एंजाइम इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, रेटिनॉल डिहाइड्रोजनेज, रेटिनल डिहाइड्रोजनेज। कुछ ना याद आए तो रेटिनॉल को रेटिनॉल डिहाइड्रोजनेज और रेटिनल को रेटिनल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। जैसे विटामिन को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को ऑल, OL, फिर रेटिनॉल को कन्वर्ट करेगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में रेटिनल डिहाइड्रोजनेज। फिर साइब जो प्रोटीन होती है, दे आर कन्वर्टिंग देम इनटू द अदर फॉर्म। थर्ड ऑप्शन इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन फोटोरिसेप्टर ऑफ रेटिना, ठीक है ना। अरे हमारे प्रोफेसर ने जब पढ़ाते थे ना, माय गॉड, आपको अंदाजा होगा कि वो एक दिन पढ़ाते थे, हम लोग 1 महीना उसी चीज को पढ़ते थे 1 मंथ लगातार पढ़ते थे, तब जाके वो चीजें क्लियर होती थी। इतना कंडेंस और इतना ब्रॉड होता था। तो नैरेटिव वे में मुझे अच्छा लगता है, डिटेल मतलब पढ़ना, बट बिफोर दैट यू शुड मेक एन इमेज। तो हाउ द ब्लीचिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट, इक्जारसिस रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन। कौन करता है फोटॉन को, इक्जारसिस रेटिनॉल। Then there is a series of conformational change and final conversion is retinal, ठीक है, रेटिनल, ये ध्यान रखना है। तो ये नोट कर लो यहाँ पे, ऑप्सिन, ऑप्सिन पे लाइट पड़ी, वो जो ग्राफ दिखा रहा था उससे अलग हट के बना लो अपना। ऑप्सिन लाइट पड़ी, देन इट कन्वर्टेड, ऑप्सिन क्या एग्जैक्टली, सिस 11 सिस रेटिनॉल। अब ये कन्वर्ट हो गया 11 ट्रांस रेटिनॉल। इसकी वजह से द कन्फॉर्मेशनल चेंज, लीड्स टू विजन। तो ट्रांसड्यूसिन का क्या रोल है, अभी इससे क्या होता है कि ट्रांसड्यूसिन इज एक्टिवेटेड, ठीक है। ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेटेड बाय GTP, ठीक है, बाइंडिंग टू द अल्फा सब यूनिट, है ना। इसके अल्फा सब यूनिट से बाइंड कर जाता है GTP, बाइंडिंग ऑफ GTP रिलीजेस अल्फा सब यूनिट फ्रॉम इनहिबिटरी बीटा गामा। तो रिलीज यहां दिखा दो रेड पेन से, यू माइट यूज द रेड पेन। अभी क्लियर है ना, कोई कट तो साउंड में नहीं आ रही, कोई हो गई होगी प्रॉब्लम, है ना। हाँ, जबकि वाईफाई वही चल रहा है। कल तो उस लड़की का आना कमाल ही हो गया था मैं उसका नाम भी नहीं पढ़ पाया, तब तक इतनी डिस्टर्बेंस हुई कि वो भाग गई बेचारी देन अल्फा इनहिबिटर इज रिलीज्ड आउट बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तब जाके ये बीटा गामा रिलीज हो गया, तो इसका मतलब ट्रांसड्यूसिन इज इनहिबिटेड बाय बीटा एंड गामा, यहाँ पे अटैच्ड होता है बिफोर GTP बाइंड टू अल्फा। तो जैसे GTP बाइंड किया ट्रांसड्यूसिन को, तो ट्रांसड्यूसिन एक्टिव ट्रांसड्यूसिन, एक्टिव। अब ये इनएक्टिव लिख लो यहाँ पे, दिस इज इनएक्टिव एंड ट्रांसड्यूसिन एक्टिव, ओके। एंड देन फास्फोडाइस्टरेज बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। फास्फो विजन का इतना सिंपल बायोकेमिस्ट्री नहीं कि 11 से रेटिनल कन्वर्ट हो गया 11 ट्रांस में और दिखाई देने लगा फास्फो
फॉस्फोडाइस्टरेज, फॉस्फोडाइस्टरेज ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिव ट्रांसड्यूसर ने किसको एक्टिवेट किया? एक्टिवेटेड फॉस्फोडाइस्टरेज, राइट। ठीक है बाबू, बच्चा ठीक है। मेरी छोटी सी गुड़िया है तो वो बहुत बहस करती है, तो मैंने इसको आज पूछा कि तुम्हें कल फीवर हो गया था, दवा ववा खाई? ठीक है, तो सोचो उसने क्या जवाब दिया होगा। उसने बोला कि मैंने कल का एक ऑर्डर किया था अमेजन पे, उसको आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं करवाया, पेमेंट मतलब उसका क्यों नहीं किया? मैंने कहा वो बहुत महंगा था, वो 999 का था, 1000 का था, और इतना पापा नहीं बियर कर सकते। तो कह रही है कि चलो 99 वाला मैं अभी भेजती हूँ। उसने फीवर के बारे में नहीं बताया कि उसका ठीक हुआ कि नहीं, कल से कितना है। तो ये है कन्फर्मेशनल चेंज। अब अगर मैंने नहीं भेजा उसको, ऑर्डर नहीं किया, तो वो उदास हो जाएगी, वो ऐसे ही बुखार हो जाएगा उसको। तो आजकल के बच्चे बिल्कुल फोटोरोडॉप्सिन है। तो ऑप्सिन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्सिन, देन एक्टिवेटेड फॉस्फोडाइस्टरेज विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसिन। फिर ये साइक्लिक जीएमपी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या हमने बताया था? फॉस्फोडाइस्टरेज। अब फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी को जीएमपी में, राइट। तो साइक्लिक जीएमपी सोडियम चैनल को एक्टिवेट करता है, मेंटेन सोडियम चैनल, and this is going to change the rod cell conformation, rod cell conformational change। ओके, तो इतना डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई करी, राइट। तो अब जीएमपी होगा तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, सोडियम चैनल नाउ क्लोज्ड। ध्यान देना, सोडियम चैनल नाउ क्लोज्ड। ठीक है, अब ये जब बंद हो जाएगा तब आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा। दैट इज कॉल्ड एज द हाइपर पोलराइजेशन। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि हम किसकी वजह से देख पा सकते हैं, हाइपोपोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल और हाइपर पोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल। देखा ये बुक कितनी अच्छी है ना, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साइक्लिक जीएमपी एंड सोडियम चैनल क्लोज। अब साइक्लिक जीएमपी क्या करता है? यहाँ पे करता है, दे मेंटेन द सोडियम चैनल। तो रॉड सेल का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, यानी हाइपर नहीं होगा, ये हाइपोपोलराइजेशन स्टेट में होगा, राइट। जब आप नींद में होते हो तो हाइपोपोलराइजेशन होता है, जब आपकी आंखें खुली होती हैं, ठीक है, आपकी आंखें खुली होती हैं। चलो आंखों का डायग्राम बनाते हैं। कितना अच्छा डायग्राम आप भी बना सकते हो, पता है आपको। यहाँ पे मैं आपको राइट दे देता हूँ, यू कैन ड्रा योर ड्राइंग। यहाँ पे है ऑप्शन, हाँ अच्छा, हाँ एनोटेशन का है तो आप कर सकते हो। ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन राइट, ठीक है। तो ये है आंखें। अब आंखों में थोड़ा नेचुरल आंखें कर दें, है ना, ठीक है। ये है खुली आंखें। बंद आंखों के क्या डायग्राम होगा? पलक झप गई।
ये तो बहुत लग रहा है ना, बंद है कि खुली है पता नहीं चला। क्लोज्ड आइज, ये है क्लोज्ड आई, तो ये है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल। क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ हाइपर पोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल। ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो इसमें एक और भी लाइन है कि मेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटा रोडोप्सिन सेकेंड। एक्चुअली में यही है मेटा रोडोप्सिन सेकेंड। यहां पे रोडोप्सिन था, अरे यार रोडोप्सिन था ये, और ये कन्वर्ट हो गया मेटा रोडोप्सिन में, मेटा रोडोप्सिन सेकेंड। चल ही नहीं रहा है मेटा रोडोप्सिन सेकेंड। चलो पता नहीं क्या हो गया स्लो हो गया सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर कमिंग टू विटामिन डी। तो आपसे कोई भी विजन के कोई भी बायोकेमिस्ट्री पूछेगा तो नाउ यू कैन गिव इन मच डिटेल्स, ओके, यू कैन डिस्कस इट इन मच डिटेल, नो प्रॉब्लम। अब आराम से डिस्कस कर सकते हो। देखो अब ये चीज लाइन आपको समझ में आ रही होगी। व्हाट इज हैपनिंग, रोडोप्सिन, इस समय सोडियम क्या है, एक्टिव है, सोडियम चैनल, राइट यहां पे, लेकिन जब लाइट पड़ती है देन इट कन्वर्टेड इनटू मेथोरोडोप्सिन 2, राइट। अब यहां इसके बीच में क्या बायोकेमिस्ट्री हुई है ना, सोडियम चैनल क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है। और यहां पे हो गया हाइपर, जो कि यहां लिखा नहीं है, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, ये लिख लो डायग्राम में, बना भी लो, पोलराइजेशन ऑफ रॉड सेल, जो कि यहां लिखा नहीं है। जब ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में होता है, मेटा रोडोप्सिन सेकेंड की स्टेट में होता है, देन देयर इज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। और अब ये सिस यहां पे होना चाहिए था कि अब नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिस रेटिनॉल, जिसको ऑप्सिन बोलते हैं, अब ये कन्वर्ट हो जाता है 11 ट्रांस रेटिनॉल में। तो ये तो चलो अलग पार्ट है, बट असल ही ये है, ये इसको हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। विजन के लिए रेटिनॉल का होना बहुत जरूरी है, ओके। साइक्लिक जीएमपी का क्या रोल है, साइक्लिक जीएमपी यहां पे है, यहां पे कौन सा है, जीएमपी, जीएमपी, ठीक है। तो which enzyme converted this cyclic GMP into GMP? Tell me, what is the name? The name is phosphodiesterase, ठीक है, phosphodiesterase, क्लियर, ठीक है बेटा। अब फॉस्फोडाइस्टेरेज कैसे एक्टिव हुआ था बताओ, क्या हुआ था यहां पे पहले, सबका आवाज थोड़ा कटता था। अभी कट रहा है आवाज, हाँ थोड़ा सा। चलो अभी नहीं कटेगा अभी ठीक है। फॉस्फोडाइस्टेरेज में पूछ रहा था कि ये कैसे एक्टिव हुआ, हाउ दिस बिकम्स एक्टिव। तो यहाँ मैंने बताया था फॉस्फोडाइस्टेरेज कैसे एक्टिव हुआ वो, हाँ, ट्रांसड्यूसिन से, ट्रांसड्यूसिन से, हाँ नहीं, बीटा गामा अलग हुआ, अल्फा से जीटीपी एक्टिव हुआ, देन ट्रांसड्यूसिन बिकम एक्टिव, एंड ट्रांसड्यूसिन बिकम एक्टिव, then phosphodiesterase become active, and then phosphodiesterase active because of active transducin, okay, active transducin because of किसकी वजह से हुआ था, हाँ इनएक्टिव ट्रांसड्यूसिन से हुआ था, राइट। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ बीटा एंड गामा सब यूनिट, हाँ component, GTP
प्लस अल्फा सबयूनिट, हाँ अल्फा ट्रांसड्यूसिन। तो अब ये पूछ सकते हैं ना कि साइक्लिक जीएमपी बना कैसे, तो यही जीटीपी इन्वॉल्व है साइक्लिक जीएमपी बनाने में, एंड दिस साइक्लिक जीएमपी इज कन्वर्टेड इनटू द जीएमपी। व्हिच एंजाइम इज इन्वॉल्व हियर इन द कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक जीएमपी टू जीएमपी, बताओ। यहां पे बनाया था, मुझे याद आ रहा है, फास्फोडाइस्टरेज, ठीक है, फास्फोडाइस्टरेज यही है, बना हुआ ऑलरेडी ग्रीन से। दे आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक जीएमपी टू जीएमपी। तो जीएमपी होगा तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। यहां पे साइक्लिक जीएमपी तो सोडियम एक्टिव, राइट। 11 ट्रांस रेटिनॉल, सिस रेटिनॉल, चलो थैंक गॉड। कितना अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा पढ़ो, दैट्स माय आइडियोलॉजी, थोड़ा सा पढ़ो बट फुल्ली याद हो जाना चाहिए। ये पूरा पाथवे बना लो आप कॉपी में, ये ज्यादा अच्छा है, राइट। ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन ही तो था, फिर लाइट आई, ठीक है, लाइट आ गई, तो ब्लीच होके 11 सिस रेटिना, हाँ 11 सिस की बना कि 11 ट्रांस बना, हाँ 11 सिस बनेगा ना पहले, फिर ऑल ट्रांस, ऑल ट्रांस अब बनेगा यहाँ पे जब सारा बायोकेमिकल चेंजेज हो जाएगा, यानी मेटारोडॉप्सिन सेकेंड जब बन जाएगा तभी ये सिस रेटिनॉल बनेगा एक्चुअल में। और मेटारोडॉप्सिन तभी बनेगा जब ये सोडियम क्लोज्ड होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, तब ये ट्रांस में। ये कोई नहीं बताता है, देखो आप अगर किसी भी बुक को आप टर्न आउट कर लो, राइट, तो आपको सिंपल लाइन मिलेगी कि 11 सिस रेटिनॉल भाई कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनॉल में, बट ये कोई नहीं बताता कि इसके पीछे लाइट का रोल यहीं तक है, ऑप्शन 11 सिस रेटिनॉल, ठीक है ना। बाकी चीजें वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल चेंजेज, जैसे साइक्लिक जीएमपी अगर ना कन्वर्ट हो जीएमपी में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फास्फोडाइस्टरेज, तो आपका ये कन्वर्जन होगा नहीं, मेटारोडॉप्सिन बनेगा नहीं, फिर ऑल ट्रांस रेटिनॉल लाइट कितनी भी रहे, अंधा अंधा ही रहेगा, है ना, अंधा अंधा ही रहेगा, दिखाई नहीं देगा उसको, आंखें रहेगी, सब कुछ रहेगा, लाइट भी रहेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, एंजाइम काफी है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, रेटिनॉल डिहाइड्रोजनेज है, विटामिन ए को कन्वर्ट कर रहा है रेटिनॉल में, है ना, फिर ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेटिनॉल डिहाइड्रोजनेज, फिर साइप है, तब जाके ये पूरा चेंज हो रहा है। तो अब ये तुम पूछोगे ये डायग्राम कहाँ से लिया आपने, ये डायग्राम अभी 2020 में पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल, वहां से उठाया है ना, उसमें थोड़ा और भी एडवांस रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा चलो हमारे लिए ये डायग्राम काफी होगा, बट मुझे नहीं पता था कि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो हमने बना दिया, वो डायग्राम बना दिया। इसको आप चाहे तो सेव कर लो, है ना, इसको मैं सेव कर देता हूं, ये सेव हो गई, सेव एज पीएनजी। अब ये यूट्यूब वाला मटेरियल हो गया कि अगर 2 मिनट इस पर डिस्कशन करूं तो जनता टूट पड़ेगी, हाँ इसमें कुछ नया हो रहा है समझो इसको क्या हो रहा है ना। तो ये वाला मतलब डाइजेस्टिव मटेरियल नहीं है ना, ये तो फैशनेबल मटेरियल हो गया, चमक दमक वाला, कि एक लाइन हमने बता दिया कि क्या आप जानते हो कैसे विटामिन ए से दिखाई देता है, तो लोग हाँ यस दे कैन गो थ्रू दिस 3 स्लाइड्स। तो ओनली 2 मिनट्स इज एसेंशियल, 2 to 3 मिनट्स, उसको डिटेल में थोड़ी बता सकते हो आप। तो अभी ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ऑल 4 स्ट्रक्चर, व्हाई दिस इज गिवन हियर, ऑल ट्रांस रेटिनल, 11 सिस रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, राइट। तो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज रेटिनल, एल्डिहाइड एंड रेटिनोइक एसिड। ध्यान देना, रेटिनल को बोला इसने, नॉल को नहीं बोला है, नल एंड रेटिनोइक एसिड 2 को बोला है, ठीक है ना। तो विटामिन डी पढ़ लेते हैं थोड़ा। विटामिन डी स्टेरॉयड हार्मोन, फंक्शन टू रेगुलेट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन फॉलोइंग इंटरेक्शन
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इज हार्मोन, ये पूछा हुआ था। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज D3, D3 called as calcitriol, calcitriol, right? And calci क्यों नाम पड़ा? Because it regulate calcium and phosphorus metabolism, इसको ये रेगुलेट करता है। तो विटामिन D2 तो आपका ये है, स्टेरॉइड का पार्ट है, बट D3 आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, राइट? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन, सॉरी, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन D3, D2 स्टेरॉइड का पार्ट है। ये है D3, ठीक है, D3। तो एर्गोस्टेरॉल डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, एर्गोस्टेरॉल ये प्लांट्स मिलता है। जब आप सन बास्किंग करते हो तो इसको कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो चूंकि यूरोपियन कंट्रीज में धूप नहीं होती है तो वहां पे नदी के किनारे या समुद्र के किनारे काफी भीड़ होती है जनता की, है ना। अब यहाँ पे तो 9 महीने गर्मी पड़ती है है ना। तो इतनी सन बास्किंग कमरे के अंदर ही हो जाती है, बाहर निकलें तो जल जाएंगे, काले काले हो जाएंगे सारे। तो एर्गोस्टेरॉल से यानी मशरूम से, मशरूम खाने से आपको मिल सकता है, लेकिन इतना महंगा है मशरूम, कैपेसिटी से बाहर हो जाता है खरीदना। विटामिन D2, एर्गो कैल्सीफेरॉल, दिस इज फाउंड बाय UV अल्ट्रावायलेट लाइट। अब तालिबानी है, उनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, ठीक है, मदरसे में गए, 5 रुपया महीना फीस दिए बंदूक उठा लिए, ठाँ ठाँ कर दिए, हो गए तालिबानी, सबसे बड़े साइंटिस्ट जहाँ किसी को देखे ठाँ ठाँ। तो दिस इज अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन। उनको इतना पढ़ा दो तो आदमी बन जाए। पढ़ो जरा विटामिन D2 D3, कल टेबल सुनाओ 12 का सारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, जितना तालिबानी पना है चला जाएगा। सारे गंवार इकट्ठे हो गए, अनपढ़, शरीयत कानून चलाएंगे 2000 साल पहले का, जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना इंटरनेट था, है ना। तो वो जब कानून चलाएंगे, सबका इंटरनेट बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद, अंधेरे में रहो, लाइट जला के रहो, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी लड़कियों का चेहरा न कोई देखे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगा तो उनका विटामिन D2 बन जाएगा। ये सब तालिबानियों का कमाल है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू, ये प्रिकर्सर पूछा हुआ है, ध्यान देना, राइट, प्रिकर्सर ऑफ D3, प्रिकर्सर ऑफ D3 इज 7 DSC, डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, दिस इज कन्वर्टेड टू D3। अगर UV आएगा तो DSC कन्वर्टेड टू D3, ओके, राइट, 7 DSC। और एर्गोस्टेरॉल अगर आप खा रहे हो ज्यादा तो आपके अंदर क्या बनेगा? विटामिन D2 बाय UV लाइट। 7 DSC, सन बास्किंग से 7 DSC प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द विटामिन D3 और कोले कैल्सीफेरॉल, राइट। तो आप समझ में आ गया, एर्गोस्टेरॉल को D2 कहते हैं और जो DSC है उसको D3 कैल्सीट्रॉल कहते हैं, राइट। तो कोलो कैल्सीफेरॉल और एल्गो कैल्सीफेरॉल एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ट्रांसपोर्टेड टू लीवर, राइट, विद द कैरियर प्रोटीन, जो हम कह रहे थे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का नाम बताओ फिर से, क्या था?
which was the carrier protein which carrying these vitamins? भूल गए? वो लिस्ट में बताया था ना, जब लिस्ट दिखा रहे थे, कैरियर प्रोटीन यहाँ नहीं था, इसके पहले था, यहाँ था ना, ये था शायद, यही था ना, B5 कैरियर प्रोटीन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, कोएंजाइम को बोला था कैरियर प्रोटीन, मूड चेंजर, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस। वो क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन का शटल? नहीं, ये साइल कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोएंजाइम की बात कर रहा हूँ। ओके, कोएंजाइम ए B5 वो कैरियर है विटामिन D2। अच्छा हाँ, कोएंजाइम ए है ना, इन द लीवर, देन ऑल द मेटाबॉलिज्म आकर। तो व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सन रेज हुआ, आपने सन बास्किंग करी, DSC बना 7 DSC, 7 DSC से D3 बना, D3 आ गया कहाँ पे, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर में आपका B5 प्लस D3 कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, एंड देन देयर इज हाइड्रोक्सिलेशन, बायोकेमिकल चेंजेज होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल विटामिन डी। देखा कितना बड़ा स्टेप है इसमें, राइट? विटामिन डी एक्चुअल हाइड्रोक्सिलेशन के बाद ही बनता है, एंड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन, माइट बी B5, ये क्वेश्चन मार्क लगा लो, आई एम नॉट श्योर बट यही होना चाहिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया कि विच वन इज द विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, विच वन इज द विटामिन कैरियर बाइंडिंग प्रोटीन, कौन है वो, कौन है उसको ढूंढा जाए, उसको ढूंढा जाए। तो ये एक्चुअल एक्टिव विटामिन डी है, कितना बड़ा रिएक्शन है, सन बास्किंग, देन ये 7 DSC D3, और अगर आपने एर्गो कैल्सीफेरॉल लिया है, क्योंकि आजकल धूप तो लेना पॉसिबल नहीं है, सब लोग काम करने वाले हैं, जब तक धूप होती है तब तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो एर्गो कैल्सीफेरॉल D2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे D2 से फिर लीवर में आ जाएगा, लीवर में अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, हाइड्रोक्सिलेशन D2 D3। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, राइट? दो ही पढ़ने में थकान आ गई तो कैल्सिट्रियोल, हाउ दे आर फंक्शनिंग इज हार्मोन, क्योंकि हमने बताया था हार्मोन कौन काम करता है, D3, और D3 का पूरा नाम क्या है, दो तरह का है वैसे, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 एंड 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो कौन सा काम करेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था 25 हाइड्रोक्सी D3, दिस इज द मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना? तो ये याद रखना। एंड अब आप पूछोगे कि हाउ हाइड्रोक्सिलेशन इज देयर, क्योंकि लीवर में तो आ रहा है, तो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एंजाइम इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, इवन कार्टिलेज। अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो काम नहीं करेगा। तो you can see this hydroxylase enzyme is present in the proximal convoluted tubule of kidney and in bone and placenta, and that's why 25 hydroxyl D3 can also be hydroxylated at 24 position by specific hydroxylase, है राइट? तो हाइड्रोक्सिलेशन एक बार नहीं हो रही है, दो बार हो रही है, 24 पे भी 25 पे भी।
तो ये देखो 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3, 25 हाइड्रोक्सी D3। तो PTH is controlling all this hydroxylation. PTH responsible for regulating this calcium and phosphate level, okay, with the help of calcitonin. अब ये नीट के एग्जामिनेशन में पूछा था, हो गया ना डॉक्टरी वाला सवाल। विच हार्मोन इज कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी? PTH, कैल्सिटोनिन, बोथ, नन। सिंपल सा हो गया, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है, याद कराना है कितना सिंपल, टफ है। एंड इफ देयर इज रिड्यूस लेवल ऑफ PTH, अब फिर क्या होगा? 24, 25 विल बी डीएक्टिवेटेड। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या है 24, 25, D3, है ना? आपको BSc में अगर बता दिया जाता तो आप शायद नीट तैयारी कर लेते, फिर MSc PhD में जाते ही नहीं। चलो भाई काम हो गया, नीट क्लियर करो। समझ में आ गई बातें। हमारे देश में अभी तक अंग्रेजों का शासन ऐसा चल रहा है। इतने आलसी होते हैं ना इंडियंस, काम ही नहीं करना चाहते। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, वैसे मोदी साहब ने एक पोर्टल खोला हुआ है कि आप सजेशन दे सकते हो, है ना? मोदी की अपनी वेबसाइट है। तो मैं यही सोच रहा था कि व्हाई नॉट वी शुड सेंड ए सजेशन, है ना? तो वहाँ पे भेज देते हैं कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस प्लान करिए। उसमें ऐसा रहेगा कि BSc 3 लेवल, MSc 1 ईयर प्लस PhD 3 ईयर, कंटिन्यूअस एडमिशन कराओ, कंटिन्यूअस बंदा खत्म कर ले। यानी अब BSc भी 2.5 की हो जाएगी, क्योंकि हाफ इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 2.5 साल के बाद, ठीक है ना? वो प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा MSc प्रोजेक्ट में एडवांस लेवल, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा PhD एडवांस लेवल में। तो ही विल बी द स्पेशलाइज्ड पर्सन, ठीक है ना? और फिर वो रूटीन डिसाइड करे कि स्पेशलाइजेशन की बात किस फील्ड में जाना है। एक्सेसरीज फील्ड, जैसे मान लो विटामिन पे उसने रिसर्च किया तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन पे जा सकता है वो, है ना? बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच या बायोटेक्नोलॉजी या RT-PCR सीख ले। टेक्नीशियन बनना चाहता है तो बहुत सारी टेक्निक सीख ले। रिसर्च करना चाहता है स्पेशलाइज्ड फील्ड में तो उस टॉपिक पे काम कर ले, है ना? तो उसको जॉब भी मिलना आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जाएगी। So vitamin D main carrier is milk. सुन लो, ठीक है? As a result of addition of vitamin D to milk, deficiency this vitamin rare in this country, क्योंकि वो कैरी करता है विटामिन डी को। और जो बच्चे दूध नहीं पीते, बहुत गरीबी है, या बहुत ज्यादा भैंस का दूध पीते हैं, इसलिए गाय हमारी राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए। ठीक है? तो ऑस्टियोमलेशिया मीन्स डीमिनरलाइजेशन, बोन कमजोर हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे विटामिन ई क्यों बालों को मजबूत नहीं करता है और कहाँ पाया जाता है, ठीक है? ये पूरा रिसर्च करेंगे कल, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विद इंटरेस्टिंग वे।